آج میرے میزبان بنے شیخ اعجاز احمد۔ شیخ صاحب کا ساہیوال کے سماجی، سیاسی اور مذہبی حلقوں میں نمایاں کردار ہے۔ میں ان سے ملاقات کے لیے ساہیوال میں موجود ان کے آفس پہنچا۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ موجودہ ملکی حالات کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی پاکستان کے ادارے کو نہیں چھوڑا کہ آپ کو کبھی نامعلوم نمبروں سے کال آئی؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے فنڈنگ کی دعوت دی ہو کہ اتنے پیسے دیں گے اس جماعت کو رگڑنا ہے؟ آپ نے ایک بیان دیا فوج اور عدلیہ کو پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر فوج اور عدلیہ کے سیاسی معاملات میں مداخلت ہو جائے گی تو جمہوریت کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ خود ووٹ کس کو ڈالیں گے؟ دبے الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیمبر اور بار کے الیکشن میں بھی ووٹ بکتے ہیں؟ اگر سینٹ میں بکتے ہیں، اگر پارلیمنٹ کا ریٹ لگا دیا جاتا ہے، بولی لگا دی جاتی ہے، تو پھر کوئی بھی عہدہ بک سکتا ہے۔ آپ نے کہا جی کہ نیشنل ایکشن پلان وہ ردی کی ٹوکری ہے۔ کیا ہمارے سیکورٹی اداروں پر یہ ایک سوالیہ نشان کھڑا نہیں کر رہا؟ خود کبھی الیکشن لڑیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ کہ آپ بھی عہدہ لینے کے لیے ووٹ خریدیں گے؟ کہ شیخ صاحب اصل میں ہیں کیا؟ میں پاکستان چیمبر آف کامرس جہاں بھی ہے پاکستان میں، جہاں بھی آفس ہے وہاں بھی سیاست ہے۔ آپ نے بیلٹ پیپر پکڑا، یہ سٹیمپ پکڑی، آپ نے لگائی، یہ 5 سیکنڈ ہے اور 5 سیکنڈ کی سزا عوام کو 5 سال میں۔ کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ شیخ اعجاز نے قبضہ کیا ہے، یہاں فراڈ کیا ہے۔ جو ایک بچہ جھونپڑی میں پیدا ہو رہا ہے وہ لاکھوں کا مقروض ہے، تو پھر دیوالیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر مجھے کوئی پوچھے کہ اس وقت آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو میں شاید اس کی حمایت کیے بغیر کہہ دوں گا کہ اس وقت عمران خان کو دے دوں گا۔ سب سے پہلے آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں۔ ہم مہاجر ہیں، دیپال پور بازار میں ہمارا کاروبار آبائی جو ہے وہ موجود۔ فوج، عدلیہ، سماجی کاموں، سیاسی کاموں، مذہبی کاموں، آپ کی انوالومنٹ ہر جگہ پر ہے۔ ہم شیخ اعجاز احمد صاحب کو کس ٹیگ کے ساتھ بلائیں کہ شیخ صاحب اصل میں ہیں کیا؟ میں پاکستان ہوں، میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ آپ ظلم کے خلاف یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس جماعت پر ظلم ہو رہا ہے یا کس شخص پر ہو رہا ہے، وہ غریب ہے یا امیر ہے۔ آپ نے آواز اٹھانی ہے اس کے لیے۔ جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا اور سمجھوتا کر لیتا ہے تو اس کو منافق کہتے ہیں۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ، آپ نے کسی بھی پاکستان کے ادارے کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے سب کی پوزیٹیوٹی بھی بیان کیا اور سب کو نیگیٹیوٹی میں بھی رنگے ہاتھوں لیا ہے۔ اس میں چاہے فوج ہو، عدلیہ ہو، اس میں مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، سماجی لوگ ہیں۔ آپ کو کبھی ایسے نمبروں سے کال آئی؟ مطلب میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کبھی نامعلوم نمبروں سے کال آئی کہ شیخ صاحب باز آ جائیں، اس پہ بات نہیں کرنی؟ بات یہ ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ جواب دہ ادارے ہیں۔ ٹیکس ہمارا ہے، ہمارے ٹیکسوں سے ان کی تنخواہیں جاتی ہیں، ان کے جو بھی اسائشیں ہیں وہ ہمارے ٹیکسوں کی وجہ سے ہے، اور ہم اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو دے رہے ہیں۔ تو پھر اگر یہ عوام کو سہولت فراہم نہیں کر سکتے، سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، انصاف عدل نہیں دے سکتے، یا سیاستدان عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے، تو ہمیں جہاں کمی ہے وہاں آواز اٹھانی ہے، نشاندہی کرنی ہے۔ نامعلوم نمبر سے اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کوئی فون نہیں آیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں۔ اگر کسی کو اچھی لگتی ہے تو وہ اپریشیٹ کرتا ہے، اور کسی کو نہیں لگتی شاید وہ دل سے مجھے اچھا جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ مجھے پتہ نہیں۔ شیخ صاحب حق کی بات کرنے والے پاکستان میں بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں، ان کو تو کالز بھی آئی ہیں، ان کو تو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور آپ کو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اچھا، ایک بات ہے، ایک ہے غلطی کی نشاندہی کرنا، ٹھیک ہے، ایک ہے ان پہ اٹیک کرنا، تنقید کرنی، ملائن کرنا، ٹھیک ہے، یا دشمن کا جو بیانیہ ہے اس کو پروموٹ کرنا۔ شیخ صاحب پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کے موجودہ حالات انتہائی سنجیدہ، اس وقت خطرناک صورتحال میں ہیں۔ میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ چونکہ سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں وہ فوج ہے، ہم جس ریجن میں رہ رہے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ہم ایٹمی قوت ہے، کشمیر ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہماری شاہ رگ ہے۔ ایک طرف
अफगानिस्तान है जहां 40 सालों से जायद जंग है, हर घर वहां जंग से मुतासर है, दूसरी तरफ दहशत गर्दी है, तखरीबकारी है, फिर इंडिया है जो हमारा अजली दुश्मन है। तो इसलिए हमें फौज को माइनस करके पाकिस्तान का तस्वर कायम रखना ये बेवकूफ़ी है। और अदालत जो है, अदलिया जो हमें इंसाफ फराहम करती है, अगर हम उनको भी निकाल दें तो ये भी ठीक नहीं है। हमने इंसाफ का दरवाजा खटखटाना है। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठकर, पार्लियामेंट हो, सियासतदान हो, ओपोजिशन हो, फौज हो, अदलिया हो, मिल बैठकर ये अपने मुफादात के लिए शायद इकट्ठे हो सकते हैं, हो जाते हैं, कानून ले आते हैं, आइन में दर्जनों तरामीम की जा सकती हैं, मगर अवाम के लिए क्यों नहीं करता? आपने नून लीग हो, पीटीआई हो, तहरीक लब्बैक हो, पीपल पार्टी हो, एमक्यूएम हो, काफ लीग हो, ये वो पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं जिनके पास इक़्तिदार है और आता जाता रहता है। आपने इनके किसी भी लीडर को माफ़ी नहीं दी, आपने हर एक को नापा तोला है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कौन सा लीडर है जो पाकिस्तान को इन हालात से बाहर निकाल सकता है? बिल्कुल क्लियर नाम बताना है आपने। पहली बात तो है कि मैं अगर इज्तिमाई बात करूं, इस वक्त एक लीडर या एक सियासी जमात के बस की बात नहीं है पाकिस्तान जिन हालात से गुजरा है कि वो निकाल सके। तमाम लोगों को, जैसे पीडीएम है, पीटीआई है और दीगर जो हमारे अदारे हैं, स्टेक होल्डर हैं, थिंक टैंक है, इन सबको बैठना चाहिए। मगर एक होप है नौजवान को जो इमरान खान की सूरत में नजर आ रही है, वो समझता है कि मेरा मसीहा ये है। मगर हमने ये भी उनकी 4 साल दौरे हुकूमत को भी देखा है, वहां कोई महंगाई कम नहीं हुई। आपको लगता है तमाम जमातें अपनी अना की कुर्बानी देकर पाकिस्तान के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएंगे जो पिछले तकरीबन 72-74 सालों में नहीं हो सका? जिद और अना ने हमारा पाकिस्तान 2 टुकड़े किया, बांग्लादेश बन गया, और वहां पे डॉलर की आज क्या कीमत है और पाकिस्तान में क्या है। कश्मीर हम लेना चाहते हैं, कश्मीर में डॉलर किस कीमत पर है और पाकिस्तान किस कीमत पर है। आज जिद और ना के बुतों ने हमें, पूरी कौम को उस लपेट में ले लिया है और सियासतदान उसके महवर से निकल नहीं रहे, और इस जिद ने पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि आप बताएं कि हम एटमी कुव्वत हैं और दुनिया में मजाक बने हुए हैं। 2022 में एपीएस के मुतल्लक एक तकरीब हो रही थी, उसमें कहा है जी कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो रद्दी की टोकरी है। सबसे पहली बात तो ये, क्या ये बयानिया मुतनाज़िया नहीं है? और अगर ये मुतनाज़िया नहीं है, क्या हमारे सिक्योरिटी इदारों पर ये एक सवालिया निशान खड़ा नहीं कर रहा? मैंने ऐसे अल्फाज में कहा था कि नेशनल एक्शन प्लान के 20 नकात हैं, ठीक है, उस पे अमल दरामद नहीं हुआ, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। असल में नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पाकिस्तान की अमन की दस्तावेज हैं, ठीक है, उन्हीं से अमन कायम हुआ है। पाकिस्तान में हमने 80,000 के करीब कुर्बानियां दी हैं, नौजवानों का लहू बहा है। शेख साहब, आप आर्टिकल 9 के बहुत बड़े हामी हैं, आपको सिरे अमन का दाई भी कहा जाता है। एक देखा गया पाकिस्तान की सियासत में, नून लीग की हुकूमत आई है तो उन्होंने पीटीआई पर, तहरीक लब्बैक पर, हर एक पर जुल्म ढाए हैं। पीटीआई की हुकूमत आई है तो उन्होंने भी इसी तरह के तहरीक लब्बैक हो, नून लीग हो, किसी पर हर लिहाज से उन्होंने उन पर जुल्म ढाए हैं, चाहे वो शेलिंग की सूरत में हो, चाहे वो किसी और सूरत में हो। क्या आपको नहीं लगता कि ये इसी तरह ये निजाम चलता रहेगा? इसमें फिर आर्टिकल 9 का किधर किरदार रहा है? असल में एक जो अपोजिशन है वो इक़्तिदार से निकल के अपोजिशन में आती है, उसको ये महसूस होता है कि मैं फौरी इक़्तिदार में वापस चले जाऊं, ठीक है, और वो इक़्तिदार में शॉर्टकट का रास्ता जो है उसको इख्तियार करते हैं, और फिर वो हुकूमत जो है वो इक़्तिदार को दुआम देना चाहती है, हमेशा इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, तो फिर एक दूसरे पे जुल्म होता है। 25 मई 2022 को आपने एक बयान दिया, फौज और अदलिया को पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान एक जमहूरी ताकत है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर फौज और अदलिया की सियासी मामलात में मुदाखलत हो जाएगी तो जमहूरियत का जो हुस्न है वो खत्म हो जाएगा? जमहूरियत में असल में फौज और अदलिया का किरदार नहीं है। कभी हम सियासतदान अदलिया के, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के पीछे छुपकर वहां से इंसाफ के तलबगार होते हैं, इक़्तिदार के रास्ता ढूंढते हैं। कभी हम गेट नंबर 4 एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे की तरफ जाते हैं,
तो यही अच्छा है कि जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो उनको शामिल करके बैठकर मामलात को सियासतदान हल कर लें। क्या आप वाकई समझते हैं पाकिस्तान मुआशी तौर पर डिफॉल्ट हो चुका है? हकीकत में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। ठीक है। हम 136 अरब डॉलर के मकरूज हैं। हम ये समझते हैं कि जो एक बच्चा झोंपड़ी में पैदा हो रहा है वो लाखों का मकरूज है, तो फिर दिवालिया नहीं तो और क्या है। तो जरिया माश क्या है आपका? हमारा अबाई जो कारोबार है वो रिटेलर हैं और होलसेलर किस चीज के? एक किराने के, है। जिसमें हमारी खुर्दोनोश की अशिया है, ठीक है। ये है। और एक मैंने प्रॉपर्टी का अपना बिजनेस वो भी किया है। जो हमारा फैमिली का बिजनेस है, खानदानी जो हम काम कर रहे हैं, वो चीनी, दाल, चावल जो अपना आइटम है, इसका कारोबार है। जितनी भी सियासी जमातें हैं जी बहुत अच्छी तनकीद कर लेते हैं आप। जी। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने फंडिंग की दावत दी हो कि इतने पैसे देंगे इस जमात को रगड़ना है या इस इदारे को रगड़ना है? पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान के तकाजों के मुताबिक हम काम करते हैं। किसी से ये फंडिंग जो है वो नहीं लेते। और कोई ये नहीं कहेगा आपको मेरी सियासी मुखालफत शहर में हो सकती है, कोई मुझ पे तनकीद कर सकता है, मगर वो ये नहीं कहेगा कि शेख इजाज ने मेरे से इतने पैसे लिए हैं, कब्जा किया है या वहां पे यहाँ फ्रॉड किया है। अल्लाह के फजलो करम से ये आपने बात पूरी पहुंचेगी और कोई नहीं कहेगा कि ये शेख इजाज ने किसी से कोई धोखा किया। आपने किसी सियासी जमात को नहीं छोड़ा, उनके लीडरान को माफी नहीं दी, सब पे तनकीद की है, खुद वोट किसको डालेंगे? अभी एक हमारे यहाँ एक इलेक्शन हुआ था, मैं पोलिंग पे गया था, वोट नहीं डाला था। दोस्तों ने बाद में जब लिस्ट देखी कि शेख इजाज की लिस्ट है, वहां पे तो वोट नहीं डाला आए हैं। अगर मुझे कोई पूछे कि इस वक्त आप किसको वोट देना चाहते हैं, तो मैं शायद उसकी हमायत किए बगैर या कुछ भी कहने बगैर कह दूंगा कि इस वक्त इमरान खान को दे दूंगा। मेरे लिए एक ये नई बात है कि आपने 5 माह पहले एक इलेक्शन हुआ और वोट नहीं डाला। मेरा ये मानना है कि ये ज्यादती नहीं है। 2 अफराद खड़े हैं ठीक है। इलेक्शन पे, अगर आप एक को अच्छा समझ रहे हैं ठीक है तो आप उसको वोट दे दें। अगर 2 अफराद है, दोनों एक जैसे हैं, आप समझते हैं कि ये कोई भी हमारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस है इसकी नुमाइंदगी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते दोनों में से, तो फिर खामोशी बेहतर है। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो प्रोमिनेंट कर रही होगी एक पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी को, उसी के बिहाफ पर वोट डाला। जो निज़ाम है ना, छोटा अदारा हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिस हो, हुकूमत के अवान हो, हर जगह पे पसंद और नापसंद और सियासत आ गई है। ठीक है। ताजरों में सियासत है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जहां भी है पाकिस्तान में, जो जहां भी ऑफिस है वहां भी सियासत। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का अलमिया और नुकसान ही यही है कि हम हर जगह पे तकसीम हैं, हमारा इत्तेफाक नहीं है। दबे अल्फाज में आप ये कहना चाह रहे हैं कि चैम्बर और बार के इलेक्शन में भी वोट बिकते हैं? अगर सेनेट में बिकते हैं, अगर पार्लियामेंट का रेट लगा दिया जाता है, बोली लगा दी जाती है, तो फिर कोई भी ओहदा बिक सकता। खुद कभी इलेक्शन लड़ेंगे? जी इंशाल्लाह। क्या आप भी ओहदा लेने के लिए वोट खरीदेंगे? नहीं, वोट नहीं खरीद। की वजह क्या है? अगर आप बाकियों को ये बात कह सकते हैं कि वोट बिकते हैं, तो क्या आप खुद कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, वोट बिकना नहीं चाहिए। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी पार्लियामेंट का दुनिया में गैर मुल्क में एक रेट मुतय्यन कर दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर वक्त का कह रहा है कि वोट बिक रहे हैं, ठीक है। तो रोक नहीं रहे। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट बिकती है। इस बकाऊ माल को अवाम ने अपने वोट से रोकना है। आपने बैलेट पेपर पकड़ा, ये स्टैंप पकड़ी, आपने लगाई, ये 5 सेकंड है और 5 सेकंड की सजा अवाम को 5 साल मिली। अगर वो 5 सालों को देख ले कि एक दिन का चूल्हा हमने जलाना है या 5 साल, या पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो फिर ये बकाऊ माल से हमें छुटकारा हासिल करना है। शेख साहब, आप वोट शायद ना खरीदें, ओहदा खरीदने की कोशिश तो करेंगे? जी, मैंने अब आज तक नहीं खरीदा, ना खरीदेंगे। अगर आपके इलेक्शन का माइंड है जी, तो फिर तो ओहदे की तरफ तो जाएंगे। कोशिश करनी चाहिए ओहदा खरीदने की? नहीं, कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की। मैं इमरान खान से भी कहना चाहता हूँ कि आप तब्दीली चाह रहे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर इसी निजाम के तहत आप दर्जनों इलेक्शन करवा लो, तब्दीली नहीं आ सकती। जब तक ये निजाम तब्दील नहीं होगा, तब्दीली नहीं आ सकती। शेख साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। जज़ाकुमुल्लाह।